Bullspree has been fantastic. It's on a bull run actually. We were honored by the CM of Gujarat, Mr. Bhupendra Patel. That's a great achievement. For a new user, what is Bullspree? बुलस्प्री आता है, आपको बोलता है आप एक काम करो, आप जो भी सीख रहे हो ना, आप मार्केट में जाने से पहले आप एक बार ट्राई करो. बुलस्प्री इज लाइक अ प्लेग्राउंड फॉर अ यूजर. हम सिर्फ इसको 4 वर्ड में हम इसको हमेशा खत्म करते हैं हमारे बीच में. थिंक फाइनेंस, थिंक बुलस्प्री. So, Harsh, how are you? Hey Shreyanshu, all good. How are things going? Bullspree has been fantastic. It's on a bull run actually, especially since last 2 quarters. So we almost started a year back, but then post Shark Tank, the response that we have seen from our audience seems to be overwhelming, and we have been really enjoying the confidence and the user experience that we are able to gather from our users. So, how's things going internal at Bullspree? This idea actually popped up in mine and Dharmal's head almost 3 years back. Post that, we did a lot of research. We did almost 6 to 7 months of UX research, customer research. We developed our MVP. And then in last 1 year, not just only we saw a growth of almost 5 to 10x in our users, but also in our revenue, we have grown 25x. Wow, that's great. Yep. Special thanks to the situations such as the Shark Tank episode. And recently we also were very privileged when we were honored by the CM of Gujarat, Mr. Bhupendra Patel. That's a great achievement. So as we can see that we had just started building the product almost 1.5 years back. But then slowly, with the small milestones that we are achieving, seems that Bullspree is actually going on a bull run. So, I want to understand this thing. If for a new user, what is Bullspree? So for a new user, I would say I would like to summarize it only in 2 steps. A, as soon as the user comes on Bullspree, he or she doesn't have to have a pro knowledge in stock market. Even if you are a novice, Bullspree is there for you. Even if you are an intermediate, Bullspree is there for you. So right from a novice of a 18-year-old guy to a 30-year-old, 35-year-old expert who trades daily on Bullspree, Bullspree is there for these kind of people. What you have to do as a user on Bullspree? Simply, you have to come on the app. You have to learn the basic concepts like what is a stock, what is a stock market, how does a stock market work? How does a basic fundamental ratios look like? What is a P ratio? What is a full form of P ratio? And once you have gained knowledge of all this, simply you have to test it by making the portfolio on Bullspree. And that's where our learn by play concept comes. So Bullspree was built all around the concept of these 3 words, which is learn by play. Wherein we know that once a user comes, he or she only have to make the portfolio using whatever the basics they have learned on Bullspree. They have to try their skills, and slowly and gradually within 6 to 9 months of playing at Bullspree, they would at least feel confident that when now they open their Demat account and go in the real world trading, they won't at least make loss. So not only learning, but you guys also providing earnings without the risk element. Yeah. So the best part is that you don't need to have any Demat account to learn, right? Okay. Lot of courses were there. Okay. So when we started Bullspree, we saw that lot of stock market courses are there, lot of knowledge, ज्ञान बहुत कुछ है market. But जब users को चाहिए कि ये ज्ञान को मैं direct market में ना जाने से पहले, is there any platform जहाँ मैं उसको बीच में use करूँ? That is where Bullspree comes. बुलस्प्री आता है, आपको बोलता है आप एक काम करो, आप जो भी सीख रहे हो ना, आप मार्केट में जाने से पहले आप एक बार ट्राई करो. इफ यू फेल कॉन्फिडेंट इनफ, फिर आप मार्केट में जाओ. सो बेसिकली डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना. हमारे कॉन्टेस्ट रेंजेस फ्रॉम 25 रुपीज to 500 rupees. But if a user wins, the upside is great. So like the upside is as good as that आपका महीने का पिज़्ज़ा का खर्चा. A college student thinks like this, right? Pizza ka kharcha or movie or a date night, all that can be sponsored.
while learning and playing. What's better than that? If I am not known to anything, like I'm a first time user, so what should I expect from Bullspree and what would I gain from Bullspree? So nice questions, yeah. So this is what we have been hearing since last 2.5 years from each and everyone that we talk to about Bullspree. Right. Bullspree is like a playground for a user. Let's say अगर आप novice हो जिसको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज या फिर आप एक्सपर्ट हो जो रोज ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट पे, आपको सिंपल बुल्सप्री क्या ऑफर करता है? बुल्सप्री आपको एक लर्न बाय प्ले का कंसेप्ट ऑफर करता है, वेर इन यू कैन कम टू आवर ऐप, यू कैन वॉच द बेसिक वीडियोज ऑफ स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल रेशियो सच एज पी रेशियो क्या होता है, एक स्टॉक जब मूव करता है उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्या कोई अच्छी न्यूज़ आई, क्या कोई बुरी न्यूज़ आई, क्या उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, ये सब बहुत ज़्यादा सीरियस फॉर्मेट में नहीं है। बिकॉज जब हमने बुल्सप्री स्टार्ट किया था हमने ये देखा था मार्केट में कोर्सेज बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी लेंदी होती है समझाने में कि यूज़र को दो चीज़ से सबसे ज़्यादा घबराहट होती है। एक तो इतना बड़ा मुझे देखना नहीं है बिकॉज आई गेट बोर्ड, सो उसको हमने कर दिया बाइट साइज वीडियोस शॉर्ट कंटेंट के फॉर्मेट में। एंड दूसरा, अगर मैं सीख भी लूँगा, मेरे पास अगर आज मैं एक 18 साल का नौजवान हूँ जो सिर्फ एक कॉलेज में है, आई डोंट इवन हैव अ 50,000 रुपीज़ कैपिटल, मैं स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेड कैसे करूँ? सो इसको हमने रिस्क फ्री बनाया कि यू विल नॉट जस्ट ओनली लर्न बट आप उसको प्रैक्टिस करो लर्न बाय प्ले पे, बाय प्लेइंग आर रिस्क फ्री कॉन्टेस्ट जिसका एंट्री फीस इज राइट फ्रॉम 25 रुपीज़ से 500 to 1000 रुपीज़, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है बाय वॉट एवर यू हैव लर्न, पोर्टफोलियो बना के आप अपने पीयर्स से compete करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट जब आपका 3:30 मार्केट क्लोज होता है आपको पता चलेगा आपका पोर्टफोलियो का रैंकिंग क्या है। नॉट जस्ट दिस, आपको ये भी पता चलता है कि आपके पीयर्स का पोर्टफोलियो क्या था, उन्होंने क्या स्टॉक लिए, वो क्यों लिए, आपको क्या लेना चाहिए था, क्या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप रिपीट करेंगे फॉर 6 to 9 months, दैट इज़ वॉट वी एंश्योर कि उसके बाद आप एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में जाके यू विल नॉट मेक एनी लॉस। सो दैट इज व्हाट बुल्सप्री गॉट स्टार्टेड विद, स्पेशली फॉर द एक्सपर्ट्स आके क्या कर सकते हैं, इफ दे हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे कैन compete विद ईच अदर, बिकॉज इन रियल वर्ल्ड let's say a X person has a 1 CR capital, a Y person has a 10 lakh capital, उनके पोर्टफोलियोज कभी सेम नहीं हो सकते, बट बुल्सप्री पे they can play a private contest, they can compete amongst themselves and they can see कि अच्छा किसका पोर्टफोलियो कितने स्किल्स में कैसे चल रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट टू मेक। अगर आपको फाइनेंस सीखना है, आपको फाइनेंस देखना है, आपको फाइनेंस ट्राई करना है कैसे वर्क करता है, कम टू बुल्सप्री। वी हैव स्टार्टेड विद स्टॉक मार्केट, धीरे धीरे हम इसको और भी सेक्टर्स में हम इसको मूव करेंगे। व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ बुल्सप्री? वो फैंटेसी ऐप है या फिर ये फिनेट ऐप है या फाइनेंशियल ऐप है? इंडिया में फैंटेसी ऐप का जो हमारा एक गेम प्ले है, बुल्सप्री के कई सारे गेम प्लेस है, अभी 3-4 है और आगे और आने वाले हैं, उसमें से वन ऑफ द गेम प्लेस इज फैंटेसी, जहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं कि आप रिस्क फ्री आप आइए, आप अपना पोर्टफोलियो ट्राई कीजिए विदाउट ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, और आप देखिए कि आपको पोर्टफोलियो बनाने की स्किल्स आपको आ रही है नहीं आ रही, आप डेवलप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दैट्स द रीजन हमने वो फैंटेसी एलिमेंट ऑफ ड्रीम 11 ऑफ द लाइक्स ऑफ द ड्रीम 11 ऑफ द वर्ल्ड, हमने उसको ट्राई किया है स्टॉक मार्केट में इम्प्लीमेंट करने का। बट एट द एंड we are a proper fintech company, we are a proper financial experiential learning app, हाँ जिसका एक एलिमेंट फैंटेसी रहेगा। we are just trying कि हम लोग फाइनेंस सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करें बाय गेमिफाइंग। एक्चुअली जब फाइनेंस वर्ड आता है ना, लोग डर जाते हैं, अरे मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, अरे मैं तो स्टॉक मार्केट में लॉस कर लूँगा। ये चीज़ अगर हम जब तक इसको हम गेमिफाई नहीं करते, जब तक हम इस पर फंड नहीं लाते, अपना इंडिया का जो ऑडियंस है वो फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अफेक्शनली नहीं देखेगा। एंड सो टू रिमूव द फियर, टू रिमूव द ब्लैक बॉक्स फीलिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बुल्सप्री के माध्यम से हम लोग इंडियन ऑडियंस को फाइनेंस का एक फन पार्ट बताए,
जिससे धीरे धीरे करके वो लोग फाइनेंस समझेंगे, स्टॉक मार्केट समझेंगे, सेविंग समझेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे एंड वेल्थ क्रिएशन समझेंगे मोर। अभी ट्रेंड में आ चुका है कि जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स है, जैसे ड्रीम 11 और भी बहुत सारे हैं, तो ये इनका काफ़ी क्रेज चल रहा है अभी। सो व्हाट डू यू थिंक द रीज़न बिहाइंड? गेमिंग इंडिया में हमेशा था। पहले वीडियो गेम्स चलते थे, एक्सबॉक्स चलता था, काउंटर स्ट्राइक चलते थे, वेरियस गेम्स, राइट। बट जब से इंटरनेट ओपन हुआ, इंटरनेट का एक्सेस, तब से ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर आ गया, बिकॉज नाउ पीपल अंडरस्टूड कि अरे अब तो हम दूर बैठे किसी के साथ भी खेल सकते हैं। एंड नॉट जस्ट फैंटेसी बट द होल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर. You take the esports sector, you take up the fantasy sector, you take up the casual gaming, hardcore gaming, such as Dota and PUBG and all that. Everything has picked up. And उसमें especially the online gaming and the fantasy, उसका almost last 4-5 साल में 200 million users आ चुके हैं. 200 million users, उतने तो टैक्स पेयर्स भी नहीं है इंडिया में. उसका ऑलमोस्ट 50% ही टैक्स पेयर्स है इंडिया में. सो दैट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. एंड ट्रस्ट मी, जब हमने इसको मार्च 2021 में जब हमने इसका MVP लॉन्च किया था, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. लाइक वी एक्सपेक्टेड, हमारी ऐप हमने सोची थी 15,000 लोगों के लिए बनाएंगे, बट एक्चुअली जुलाई 21 में वी क्रॉस ऑलमोस्ट 30-40,000 यूजर्स एंड एवरीथिंग ऑर्गेनिक. राइट. एंड दैट्स द रीजन हम बोलते हैं कि बुल्सप्री इज ऑन अ मिशन ऑफ increasing the retail participation in stock market and ultimately finance from a mere 4% to more than 25, 30, 40%, which is there in countries like US, China. तो आपका अप्रोच, आपका जो टेक है वो ये है कि यू वांट टू इरेडिकेट द फियर ऑफ इन्वेस्टिंग. हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं इंटरनली, जो हम लोग एम्प्लॉयज को बताते हैं कि गाइज टीम, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट द फियर इनटू लव, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट द हेट्रेड इनटू फन. Right. So this is what we are trying to do. We want to inculcate a feeling of think finance, think Bullspree. Let's see कैसे होता है. अभी तक जर्नी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर रही है. Looking forward for the positive stuff. But the incentive of learning that you will get rewarded, doesn't it put Bullspree under fantasy gaming? That's a great question. पता है शियांशु, ये हमें अभी तक ऑलमोस्ट 3 साल में हमने 3,000 बार सुना होगा. And we completely agree that without inculcating the fantasy element, without inculcating the gaming or the rewards element, आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस को आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते. बिकॉज आप समझिए, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट जब वर्ड आता है ना, तो रियल मनी ही आपके दिमाग में आता है. Correct. अगर उसको सिमुलेशन करना था या वर्चुअल मनी करना था, तो वो तो सदियों से चल रहा है. वो तो 20 स्कूल्स में भी होता है, वो तो हर जगह होता है. तो क्यों सिर्फ वो एक नीश मार्केट बन के रह गया? तब हमें समझा कि ये जो ड्रीम 11 ऑफ द वर्ल्ड साइड, ये सब जो कर रहे हैं, अगर हम इसको स्टॉक मार्केट से मिला दे, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन करवाए कि आप आओ, आप फैंटेसी पोर्टफोलियो बनाना सीखो, आप अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना सीखो, एट द सेम टाइम आप सीखोगे भी और कमाओगे भी थोड़ा बहुत, साथ में मज़ा तो बहुत करोगे, तब जाके लोगों को धीरे धीरे फाइनेंस या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने का इच्छा करेगा. इच्छा उनका इंक्रीज होगा, क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगा. एंड दैट्स द रीज़न बुल्सप्री का एक गेम प्ले फैंटेसी है. और हम इसको बिल्कुल भी छुपाएंगे नहीं, बिकॉज वी आर वेरी प्राउड टू से कि बुल्सप्री के ऐसे 18-20 गेम प्लेज है, जिसमें से वन ऑफ द गेम प्लेज वुड बी फैंटेसी. एंड दैट इज वॉट विल ड्राइव यूजर्स amongst the other gameplays at Bullspree. Taking out, like, what is the difference between a proper fantasy gaming app and Bullspree? Proper fantasy gaming app जो Dream 11 जैसी जो कंपनियां जो चालू हुई थी, उनका क्या था? They started for the love of cricket. They started for the love of sports. Right. Bullspree is here to create the love for stock market, to remove the fear of stock market, and hence Bullspree is not just a fantasy app. Bullspree is trying to make a financial ecosystem. जहाँ पे यूज़र आएगा, यूज़र सीखेगा, यूज़र अपनी स्किल्स टेस्ट करेगा. लर्न बाय प्ले का कंसेप्ट हम लोग जब उसमें इनकलकेट हमने किया है, जब वो उससे यूज टू होगा, और वो यूज टू हो कि जब वो रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में जाएगा, रियल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में जाएगा, दैट इज़ व्हेन हमें एक्चुअल इम्पैक्ट दिखेगा सोसाइटी में कि यार बुल्सप्री ने
फाइनेंस को एटलीस्ट शहर शहर घर घर पहुंचाया। जैसे हमारा एक को फाउंडर है झुमरी तलैया से, हम लोग हमेशा बोलते हैं यार कि जिस दिन झुमरी तलैया के लोग भी बुल्सप्री यूज करने लग गए ऑर्गेनिकली, नॉट बिकॉज द को फाउंडर इज फ्रॉम झुमरी तलैया बट बिकॉज बुल्सप्री हैज टू बी यूज्ड, दैट्स द डे बुल्सप्री का मिशन कंप्लीट होगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इन्वेस्टिंग करना है एंड आई नो जीरो नॉलेज अबाउट इट एंड अभी मार्केट में अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है जैसे ज़ीरोधा एंड ग्रो, तो उधर जाने से पहले मैं अपना स्किल टेस्ट करने के लिए करेक्ट बुल्सप्री पे आऊँ। सो वी आर द किंडरगार्टन फॉर देम, ओके, वी आर द प्लेग्राउंड फॉर देम। सिंपल है, अगर आपको कभी स्विम करना है आप डायरेक्टली आप ओशन में नहीं जाओगे, करेक्ट, पहले आप स्विमिंग पूल में सीखोगे। सेम एज अ केस, पहले आप यहाँ आओ, आप सीखो। अब स्विमिंग पूल के इंस्ट्रक्टर अगर आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे दे और कभी आपको पानी में कुदाए नहीं, आप कभी नहीं सीखोगे, कभी आप ओशन में जाके भी आप डूब जाओगे। सेम इज अ कंसेप्ट विद बुल्सप्री के। बुल्सप्री के सिर्फ स्टॉक मार्केट के वीडियोस या लर्निंग लेक्चर्स चलाने से कुछ नहीं होगा। उसका जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एक एनवायरनमेंट में दिखेगा जहां पे यूजर को रिवॉर्ड मिलने की भी एक इंसेंटिव अपेक्षा हो, एक इंसेंटिव हो, तब जाके उसको पता चलेगा कि अच्छा चलो अब मैं रियल वर्ल्ड में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक बड़े ओशन में कैन आई डाइव, कैन आई स्विम। So, have you faced any challenges so far when it comes to online gaming? सो श्रेयांशु, चैलेंजेस की बात ऐसे है कि डे 1 से बिफोर वी स्टार्टेड बुल्सप्री, बिफोर दी आई नेम बुल्सप्री केम, इससे पहले हमने काफ़ी इटरेशंस किए थे बुल्सप्री के नाम पे। बिफोर वी थॉट ऑफ डेल्टा कैश, स्टॉक कैश एंड वेरियस अदर नेम्स। जब हमने स्टार्ट किया था डे 1 से हमें पता था कि लीगलिटी बहुत सारे रेगुलेशंस है जो हमको पार करने हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग को उस टाइम पे 2020 पे ऑनलाइन गेमिंग कैसे वो उसको गैम्बलिंग या बैटिंग के थ्रू देखती है, बिकॉज उस टाइम पे अलग नहीं था। बट टू आवर कॉन्फिडेंस हमारा था गवर्नमेंट में, इट प्रूव टू बी बेस्ट। बिकॉज मैं एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट 1.5 साल में गवर्नमेंट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिए। एक, गवर्नमेंट ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट जो ला रहा है जिसके अंडर वो एक ऑनलाइन गेमिंग का पूरा एक अलग से रेगुलेशन, एंड सेकेंडली अभी जो अपना जो रिसेंट फाइनेंस बिल आया, जो अपना बजट आया, वो बजट के अंडर जब उसने TDS का एक नया रेगुलेशन लाया एंड एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग को बैटिंग और गैम्बलिंग से अलग किया, दैट इज व्हाट इट शोज कि गवर्नमेंट एक्चुअली इसकी पावर रिकॉग्नाइज कर रहा है। गवर्नमेंट देख रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग इज सच अ बिग सेक्टर, ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट अ प्योर प्ले बैटिंग और गैम्बलिंग, एक्चुअली इसमें बहुत स्किल्स, बहुत टाइम चाहिए होते हैं, एंड गवर्नमेंट धीरे धीरे उस तरफ मूव कर रही है। Will there be any backslash of this regulations from users? So change is always resistable, right? Change कभी भी first phase में accept नहीं होता है। But then we know our users, we have understood till now कि अगर हम हमारे users को बताएंगे this is what government is doing and this is for your safety only, तो वो काफ़ी इम्प्रूव होना है। आप एक चीज़ समझिए, आज की डेट में ओनली 8 करोड़ टैक्स पेयर्स है इंडिया में रफली। ये जो रेगुलेशन आया है 2023 अप्रैल 2023 से जो अभी लागू हुआ है, इसके बाद 23-24 से नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन इंडिया आर गोइंग टू इंक्रीज, राइट? जब ये सारी चीज़ें वो लोग समझेंगे, एक 18 साल का बच्चा समझेगा कि यार मेरे बैंक के अगेंस्ट TDS क्या करता है, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, उसको कैसे फाइल करते हैं, तो एक ये पूरे इकोनॉमी के लिए शिफ्ट होता है। दिस इज नॉट जस्ट कि सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग चेंज हो गया, ऑनलाइन गेमिंग में TDS आने से लोगों को पता चलने लगेगा कि अच्छा TDS कटता है, किस रेट पे कटता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको फिर यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। What were your biggest challenges that you had faced so far, or something that is not known to public till now? There were a few great challenges that we faced as a first-time entrepreneur. Me, Ms. Divyansh, we all are the first-time entrepreneurs, right? So the biggest challenge was टीम कैसे बनाए, एक ऐसी टीम जो पैशनेट हो, जो बुल्सप्री के साथ कनेक्ट कर पाए, हमारा जो बिली है, जो हमारा लोगो है, उसके साथ कनेक्ट कर पाए। हम ऐसा क्या टीम को मोल्ड करें, हम फ्रेशर्स ले, हम इंटर्न्स ले, हम एक्सपीरियंस ले, हम तीनों का मिक्सचर ले,
what should be the constituent of team. So basically building a team was one of the biggest challenge. हमने ये 2-2.5 साल में अच्छी एक core team बनाई हुई है and we want to grow from here. The second biggest challenge for Bullspree was the location. Bullspree exists from Ahmedabad. Okay, Ahmedabad is very good for business, for manufacturing and all that. But जब tech की बारी आती है तो Bangalore is the prelude. The hub of it, yeah. It's the hub. We missed the bus in 2000 and we are facing the consequences of it till now. So location एक बहुत ज़्यादा हमें लगता था मे बी अहमदाबाद में टेक डेवलप हो पाएगा नहीं हो पाएगा because various people scared us, scared the shit out of us that अहमदाबाद तो हो ही नहीं सकता, बैंगलोर में ही होगा, बैंगलोर में आपके पास सारे टेकीज है, सारा स्मार्ट लोग है, सारे अच्छे वेल नोन स्टार्टअप्स आर फ्रॉम बैंगलोर. बट देन वी वर बूटस्ट्रैप्ड, राइट? एंड व्हेन यू आर बूटस्ट्रैप्ड यू हैव फंडिंग क्रंच. जब आपके पास फंडिंग क्रंच होता है आपको ऐसे पहले देखना होता है आप ऑपरेशनली कहाँ पे वायबल. एंड दैट्स द रीजन वी चोज अहमदाबाद. हमने दिन रात एक किया एंड वी आर प्राउड टू से दैट आउट ऑफ 25+ people that we have, only 2 or 3 are from Ahmedabad, including me. Otherwise, everyone is from out of Ahmedabad. So we convinced everyone for the vision of Bullspree कि आप आइए, आप हमारे साथ काम कीजिए, आप हमारे साथ 2 साल दीजिए. तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप हमारे साथ आइए, अगर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है आपको तो ऑलरेडी आप कॉर्पोरेट सब देख चुके हो तो आप हमारे साथ आ जाओ. So these were the 2 biggest challenges that Bullspree faced. And the third one that still we are facing, which is a day-to-day challenge. प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, यूजर्स को कैसे लाना है. इट इज़ नॉट दिस वन सिंगल थिंग जो बुल्सप्री लड़ता है. बुल्सप्री कभी लड़ता है कि मार्केटिंग में अच्छा एक्स यूजर्स को कैसे लाएं, यूजर्स को रिटेन कैसे करें. अच्छा यूजर्स रिटेन हो रहे हैं तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है. रेवेन्यू भी जनरेट हो गया तो अब नया क्या सोचना है जिससे यूजर बार बार टिका रहेगा. यूजर्स को क्या चाहिए. सो one good thing that we learned at Bullspree in our initial 1-2 months was जितना ज़्यादा हम यूज़र सेंट्रिक रहेंगे, जितना ज़्यादा हम ये सोचेंगे यूज़र को क्या चाहिए. You mentioned that you missed the bus for Bangalore. Why do you think that in India there's such biasness about startup culture? I would not say it is a biasness. I would say it is जहाँ पे जो कल्चर है वहाँ पे वही रहना है. आज अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में एक छोटा सा बच्चा भी सोचता है मैं बिजनेस करता हूँ. आज अगर आप नॉर्थ साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पूरा कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है. वहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, वहाँ पे जॉब वाले भी है, वहाँ पे एमएनसीज भी है. जब इंडिया में आईटी आ रहा था तो बैंगलोर गवर्नमेंट, एक्चुअली कर्नाटक गवर्नमेंट gave few incentives, few subsidies or whatever the things that were favorable to the IT sector. And जब जो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने के लिए कोई एक्टिविटी लेगी, कोई स्टेप्स लेगी, तो वो स्टेट में, वो सिटी में वो सेक्टर फ्लरिश होना ही है. आज गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर वन ऑफ द बेस्ट. सो इट इज़ नॉट अबाउट बायसनेस, इट इज़ अबाउट जहाँ पे जो बेस्ट कल्चर मिलेगा वहाँ पे लोग वैसे रहेंगे और वहाँ पे जाएंगे. आपको लगता है अहमदाबाद as will be known for IT sector? We hope so. We hope so. One day our current government will take some steps. जैसे अभी उन्होंने गिफ्ट सिटी में सेज चालू किया है for service sector. Maybe it should help us. But then now we are coexisting in Bangalore. We also managed to hire 2-3 people at Bangalore, and now right now we are working from WeWork from there. Okay. Slowly and gradually we are thinking we should be able to coexist in Ahmedabad, in Bangalore. Let's see how it goes. So what do you think in India in today, in 2023, if anybody starts to think like I want to do something of my own or starters or be an entrepreneur, what are the main set of challenges they face? पहले बीच में था कि हर घर से बीटेक हो रहा है. हाँ. उसके बाद आया हर घर से एमबीए हो रहा है. MBA हो रहा है. अब because of Shark Tank, because of funding news के बायजूस यूनिकॉर्न बन गया, ड्रीमलर्न यूनिकॉर्न बन गया. अब घर घर में लोग सोचते हैं यार मुझे स्टार्टअप करना है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव. बट इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग चैलेंज फेस करते हैं, दैट इज़ लोग ये सोचते हैं मुझे स्टार्टअप करना है. लोगों को एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या, मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है तो मुझे सॉल्व करना है. सी इंडिया ना इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? एंड सब लोग बोलते हैं इंडिया के नेक्स्ट 10 years है, इंडिया बहुत डेवलप होने वाला है. रीज़न है उसका बिकॉज यहाँ पे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत है.
यहाँ पे अगर आप ये सोचने जाओगे कि मुझे वैल्यूएशन में 1,000 करोड़, 7,000 करोड़, $1 बिलियन, $2 बिलियन करना है, आप उधर नहीं पहुंच पाओगे। बट अगर आप ये सोचोगे, ये जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे ये और भी लोग फेस कर रहे होंगे? इफ द आंसर इज यस, यू शुड थिंक इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, एंड देन यू शुड थिंक कि चलो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं स्केलेबिलिटी है कि नहीं, एंड देन उस पर आगे बढ़ो। ना कि होते हैं लोग जो पहले से सोचते हैं कि मैं वैल्यूएशन पे भागूंगा, मैं $1 बिलियन कंपनी बनूं, बनना है, उनको भी बनना है, राइट, बट इन ऑर्गेनिक वे। वी आर मोर फोकस ऑन कैसे हमको फाइनेंस को आगे बढ़ाना है, अगर वो बढ़ा तो हम अपने आप बढ़ेंगे। सो इंडिया में ये आप स्टार्टअप करने का मत सोचो, आप ये सोचो कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, कि लोग स्टार्टअप करने में चले जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं लग रहे। एंड बी, लोग जो वैल्यूएशन के पीछे जो भागना चाह रहे हैं, बहुत लोग ऑब्वियसली दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल लाइक मिस्टर रितेश अग्रवाल एंड अदर गाइज, बट उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या उसका स्केलेबिलिटी है, क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम है या सब मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज़, पीपल थिंक कि मैं अकेले काम कर लूँगा, मुझे टीम नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी श्रेयांशु, इफ देयर वाज समथिंग जो आप मुझे बोलते हैं, हर्ष आपसे 3 साल पहले जब आपने बुल्सप्री स्टार्ट किया क्या करते, आई वुड हैव सेड, मैं सबसे पहले जो मेरा एटीट्यूड था कि यार ये 5 चीज़ तो मैं अकेले ही कर लूँगा। बिकॉज बचपन से सिखाया जाता है ना, बी कॉस्ट सेव करो। बचपन से ये बताया जाता है अगर आपके पास 10 रुपए की पॉकेट मनी है तो उसको आपको कैसे बचाना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बट आप ये भी तो सोचो, अगर आप वो 10 रुपए बचाने के चक्कर में जो आप दिन में 16 घंटा दे रहे हो, उसमें से अगर आप 10 घंटे वो 10 रुपए बचा रहे हो, तो क्या उसका वैल्यू 10 आवर्स है? सो आई वुड से टीम बनाओ। हाँ, सब कुछ डेलीगेट मत करो, बट जो चीज़ आपको लगती है कि आपका टाइम, आप अगर ये 5-6 घंटे अगर आप प्रोडक्ट सोचने में लगाओगे या 10 लोगों से मिलके कोई एक अच्छा डेवलपमेंट करना चाहोगे, अच्छा प्रोटोटाइप, अच्छा पार्टनरशिप करना चाहोगे, उसमें ज़्यादा डालो। और बाकी चीज़ों के लिए टीम डेवलप करो। टीम इज समथिंग जो आपको आगे लेके जाने वाली है। टीम बिल्ड करना इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया। टीम, एक अच्छी टीम डेवलप करो। अगर आप वो सीख गए ना, तो इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, राइट, एंड द मेजोरिटी यूथ। वो यूथ में से आप अच्छी से अच्छी आप टीम बना सकते। So being an entrepreneur, what have been your major learnings? I would like to classify 2 major learnings जो हमने अभी तक बुल्सप्री में देखी थी। ए, हमने जब बूटस्ट्रैप किया, हमारा MVP जब सक्सेसफुल हो गया, हमें लगा हमें फंडिंग मिल जाएगी, हम है राजा, राइट। हम जब मार्केट में गए, हमें पता चला कि VCs ऐसे ही आपको फंडिंग नहीं देने वाले। अच्छा, you have to climb the ladder, it is not a lift, you have to go to the staircase, through the staircase, you have to first approach the angel investors, पहले वहाँ से, बिकॉज आपको हर स्टेज के इन्वेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग जब बोलते हैं हमारे कैप टेबल पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हर रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले हम एंजल इन्वेस्टर्स से आप फंडिंग लो, उनसे सीखो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो कि अच्छा उन्होंने अपने, बिकॉज these angel investors in their respective lifetime they have created something or they have built something, तो build करना सीखोगे आप। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो उन्होंने की है वो आपको बताएंगे कि आप कैसे ना करो। सो इसके बाद फिर आप Tier 2 VCs के पास जाओ, फिर Tier 1 VCs के पास जाओ, धीरे धीरे करके आप अपना फंडिंग का लेडर आप क्लाइम करो। दिस इज नंबर 1। जो हमें लगता है कि VCs फंडिंग दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। It is not the real life, it is a real life, जहाँ पे आपको slowly and gradually आपको मूव करना है। एंड सेकेंडली, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में जब हमने MVP बनाया, हमें लगा कि हमारा जो आइडिया है ये तो चल ही जाना है मार्केट में, ओके। वो MVP का रिसेप्शन बहुत अच्छा आया, बट वो MVP का रिटेंशन इतना अच्छा नहीं, ओके। जब हमने यूजर रिसर्च किया, जब हम एक्चुअली फील्ड में गए, हमने हमारे कस्टमर्स से पूछा, हमने स्ट्रेंजर्स से पूछा, हमें पता चला कि ये ऐप एक्चुअली जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी थी, लोगों को समझ ही नहीं आ रही। लोगों को पता ही नहीं है बुल क्या है, बेयर क्या है, क्रेडिट क्या है, मार्जिन क्या है, स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। सो कस्टमर रिसर्च, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट, कस्टमर सेंट्रिक ऐप,
ये बनानी बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द रीज़न देन हमने जुलाई 21 से हमने पूरा 6 महीना हमने पिवट किया एंड Feb 22 में हमने ऐसी ऐप निकाली जो 1.5 साल में आज हमें मोर देन 5 लाख डाउनलोड दे चुकी है एंड मोर देन 25x रेवेन्यू वी हैव क्लॉक्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर क्लोज. सो these two are the major things कि आप कस्टमर सेंट्रिक ऐप बनाओ, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाओ, जो आपका कस्टमर चाहता है वो उसको दो, ना कि जो आप बेचना चाहते हो. एंड दूसरी चीज़, जब आप फंडिंग के लिए जाते हो तो हमेशा ऐसा सोचो कि आप नीचे से ऊपर आप कैसे जा सकते हो, ना कि डायरेक्टली आप क्लाइंब करें. फंडिंग से मुझे एक चीज़ याद आया, लाइक आई हैड सीन दिस थिंग दैट इन इंडिया it's more like आप पहले product develop करो, then you pitch it to the investors. But where in the West, they start with funding with the concept idea and then they start building the product. So what do you think on, like, what's your opinion on this? Because इंडिया में जुगाड़ू बहुत है ना. रीजन इज इंडिया में हर चीज़ का लोग पहले जुगाड़ करना चाहते हैं. हाँ, उनको पता है कि इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट, राइट? दे हैव ऑल देयर लाइफ डन द बिजनेस, राइट? एंड अगर सिर्फ कंसेप्ट की बेस, इंडिया में जितने कंसेप्ट्स आते हैं उतने वेस्ट में आते होंगे, नहीं आते होंगे, बट इंडिया में हर रीजन में कोई ना कोई कंसेप्ट है. अगर हर कंसेप्ट पे पैसे डालते गए तो यू ओनली हैव लिमिटेड मनी टू स्पेंड. सो आउट ऑफ 10 lakh concepts that come, you have to have only 1 lakh or 2 lakh concepts जो एक्चुअली आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? अगेंस्ट वेस्ट जो कंसेप्ट आती ही, सो वेस्ट में क्या है, जब आप उसके कंसेप्ट का सोचते हो, यू हैव 100 people around you to say कि अच्छा इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. यू हैव लॉट ऑफ टूल्स एंड टू डू अ कस्टमर रिसर्च, to do a UX research, to do a learning and all that. इंडिया में आपको सब कुछ खुद करना है. सो पहले आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि जो मैंने सोचा है उसके पीछे मैंने कितना एफर्ट डाला है, बट उसके पीछे मैंने क्या क्या रिसर्च करा है, क्या क्या मेरा वायर फ्रेम है, क्या क्या मेरा प्रोडक्ट रोड मैप है, मैं क्या बना चुका हूँ. उसके बाद ही तो 10 लाख में से टॉप 1 लाख को चूज कर पाएगा. एंड दैट्स द रीजन आई वुड से, बिकॉज हमारे साथ भी हुआ था, राइट? हमने जब मार्च 2021 में जब हमने कंसेप्ट सोचा था, हमें लगा था कि शायद हमें कोई इंजन मिल जाए, बट देन वी अंडरस्टूड, जब हम उनके पास गए, वी गॉट अ रियलिटी चेक कि पहले एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है. एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाओ, MVP बना के यूजर्स के पास जाके टेस्ट करो. टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि जब आप फंडिंग ले लोगे तो फंडिंग पैसा उड़ेगा नहीं, वो फंडिंग का पैसा आपको कहाँ डालना है जिससे आप और आगे बढ़ो. एंड दैट्स द रीजन शायद कंसेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता है. जाते जाते एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा मैं कि what are your 3 main tips or advice you would like to give as an entrepreneur to the upcoming entrepreneurs of India? सो आई वुड से, अगर आप नेक्स्ट बिरला या अंबानी या ज़करबर्ग या बिल गेट्स बनना चाहते हो, देयर आर 3 बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ए, आपके को फाउंडर्स और आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. They have to be aligned with the vision that you have. B, I would say कि आप अपना वो 3 Idiots का जो लाइन था ना कि आप अपनी स्किल्स अच्छी करो, कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी. That was not just a line, that was a lesson. That meant कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस इतना अच्छा बनाओ कि आपके पास कस्टमर्स खुद ब खुद आएंगे. एंड जब वो कस्टमर्स आएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, अपने आप आपके पास फंडिंग आएगी. एंड C, ये स्टार्टअप है मेरे दोस्त, इसमें चैलेंजेस बहुत आएंगे, बट अगर इसमें आपने गिव अप नहीं किया और अगर आपने अपना विजन बहुत अच्छे से परसीव किया, तो ट्रस्ट मी, यू विल बी सक्सेसफुल. एंड द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल इज नॉट बीइंग अ यूनिकॉर्न. द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल शुड बी कि आपका कस्टमर आपसे कितना खुश है. अगर आपने ये तीनों चीज अचीव कर ली, ट्रस्ट मी, you can be the next Bill Gates or Zuckerberg or any other such entrepreneur who has shown the world that startups are for you. You can change the world for better. Thank you. Okay, that's a wrap.